Hello everyone, so welcome back to Kalamais Academy, and we are looking at the most probable topics for the UPSC Prelims 2025 under the current age series. And this topic in this session we will be dealing with the classical language status, right? So there are 11 classical language currently in India now. ये न्यूज में था because last year 5 languages got the classical status after the original literary tradition norms was dropped, right? So this was in the news. इसके बारे में सारा कुछ हम लोग देखते हैं. अभी के टाइम पर ये सारे 11 लैंग्वेज जो हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस होल्ड करते हैं. क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इज बीइंग होल्ड बाय द तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, देन असमी, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत. तो ये 6 तो पहले से थे और लास्ट ईयर इन 5 को दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, राइट? नाउ यू विल फील दैट कब से स्टार्ट हुआ ये क्लासिकल लैंग्वेज, बिकॉज क्लासिकल लैंग्वेज जो होता है वो तो बहुत पुराना है, 2000 या 1500 साल पुराना होता है या उससे भी पुराना हो सकता है, राइट? तो क्लासिकल लैंग्वेज कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में देना. सो इन इंडिया द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस वाज बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम 2004. ठीक है, तो 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस डेजिग्नेशन स्टार्ट हुआ है. सो एंड प्लीज रिमेंबर दैट Tamil became the first language to be given the classical language status on the 12th of October 2004. डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2004 आप याद रख लेंगे, that is more than sufficient. But this is important that Tamil was the first classical language, not the Sanskrit. Sanskrit was added later on in 2005. Then in 2008 Telugu was added. In 2008 itself Kannada was added, means Telugu and Kannada they were added simultaneously. Then there was Malayalam in 2013 and Odia in 2014. So these were the 6 classical languages which were there in our country. Last year 5 more classical languages have been identified. Now you will ask that how this classical language, because India has more than 2000 languages, right? 22 languages are there in the 8th schedule of the Constitution of India. So how this classical language is being identified, how they are declared as a classical language, right? So what are the criteria regarding that? So criteria is being decided by the government on the recommendation of Linguistic Expert Commission. So Linguistic Expert Commission under the Sahitya Academy, so they recommend that which language should be the classical language, as well as what should be the criteria for declaring the classical language, right? So the first criteria should be there should be high antiquity. High antiquity means the language should be in existence since at least 1500 to 2000 years ago, right? So then it will be called as the classical language, because you know the classical चीज जो भी है वो पुराने होते हैं. तो पुराना होने के कारण क्या है, अब कितना पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए. तो कैसे पता चलेगा कि उनका कोई टेक्स्ट हो, कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो उसके बारे में, राइट? तभी उसको माना जाएगा कि वो क्लासिकल लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में था, राइट? देन देयर शुड बी एंशिएंट लिटरेचर. सो पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और द टेक्स्ट कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन. So ancient text, ancient literature should be there in that particular language, and those texts, है ना, the content of those texts, so that must be circulated across the generations. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिससे किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है. Another thing is knowledge text should be there, right? Now this provision was changed in last year, and because of that 5 more classical language got recognized. तो इससे क्या हो गया, knowledge text should be there, especially prose should be there, है ना? प्रोज एंड पोएट्री दो तरह का होता है. पोएट्री तो
ये हो गया कि जो पोएम टाइप की चीज होते हैं, सो वो पोएम वो पोएट्री होता है। प्रोज इज जो स्टोरी लाइन होता है, राइट। सो द स्पेशली द प्रोज टेक्स्ट शुड बी देयर, इन एडिशन टू सम पोएट्री शुड बी देयर, एपिग्राफिकल शुड बी देयर, दैट इज इट मे बी इन सम काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन और ऑल, राइट। तो इस तरह का फीचर्स जो है, इस तरह के नॉलेज से रिलेटेड जो उनके टेक्स्ट लिखे हुए हों, तो पुराना हो और उनके बारे में ये टेक्स्ट अवेलेबल हो। Then distinct evolution should be there. The classical language and the literature are distinct from the modern. See, होता ये है कि whichever language is there, पहले जो language था वो बहुत complex था, so only few people could speak that language. For example, Sanskrit, if you take the example of the Sanskrit, so the Sanskrit was being spoken by only very learned person, very educated person, right? उस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है, मानक संस्कृत कहा जाता है, राइट। दैट इज ए स्टैंडर्ड संस्कृत। बट लेटर ऑन व्हाइल स्पीकिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज गॉट रिड्यूस्ड, क्योंकि आम बोलचाल के भाषा में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज नहीं किए जा सकते। देयरफॉर ये क्या होता है कि अभी के टाइम पर जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है, जरूरी नहीं है कि जो 1500 या 2000 साल पुराना जो मिल रहा है उसका टेक्स्ट उसी फॉर्म में यूज किया गया हो सकता है विद द टाइम द लैंग्वेज चेंजेस, राइट। तो इस कारण से क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न। अभी जो मॉडर्न जो लिटरेचर लिखे जा रहे हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज उससे डिस्टिंक्ट होगा, एंड देयर कैन ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूटी between the classical language and its later form of its offshoot. तो ये बिल्कुल पॉसिबल है that same language का जो टेक्स्ट लिखा गया है वो अर्लियर टेक्स्ट एकदम डिफरेंट सेटअप का हो सकता है, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ ग्रामर्स यूज कर सकते हैं। बट अभी के करंट के टाइम पर जरूरी नहीं है कि सेम सेट ऑफ वर्ड, सेम सेट ऑफ ग्रामर्स यूज किए जाए, राइट। सो दैट विल बी there can be some kind of changes as well, right? And obviously जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होता है, जैसे जैसे लैंग्वेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, राइट। सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द क्लासिकल लैंग्वेज इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। नाउ अब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो उससे फायदा क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज, राइट। तो एक तो बेनिफिट ये है कि इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज देयर विल बी सम पर्सन हु विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च, है ना। सम स्कॉलर्स होंगे जो हो सकता है आर्टिकल्स वगैरह लिखे, है ना। तो बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटी हो सकते हैं उस रिलेटेड, रिसर्चर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेज का। तो इन सब को क्या किया जाएगा, देयर आर 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स आर गिवन टू दिस काइंड्स ऑफ स्कॉलर्स। तो हर एक साल कम से कम 2 इंटरनेशनल अवार्ड जरूर दिए जाएगा, राइट। क्यों, ताकि इट शुड बी इंसेंटिवाइजिंग अनदर पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज जो स्पीकिंग, दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग जो पीपल हैं, उनको भी ये मोटिवेशन होगा कि अगर वो भी इस तरह का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें टीचिंग करते हैं, तो उनको भी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल सकता है। 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स लाइक द प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता है, साथ ही महर्षि बद्रियायन सम्मान भी दिया जाता है। तो ये सब सम्मान किसके लिए दिया जाता है, जो क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स के लिए जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनके लिए रिसर्च करते हैं, उनके लिए जो है वो राइट अप करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लिटरेचर के बुक्स को पढ़ के उस लैंग्वेज में कुछ नया लिखा, तो इन सब के बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है। देन University Grant Commission, you know that UGC, what kind of organization is this UGC? It is a statutory organization, right? तो वो लॉ के अंदर बना है, और UGC से ग्रांट, UGC जो है वो क्या करता है, रिकॉग्निशन ग्रांट करता है टू द यूनिवर्सिटीज, राइट। सो द UGC क्या करेगा, इट विल ट्राई टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर इन सारे क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड वहां पर स्टडी हो पाए, तो वहां पे टीचर्स अवेलेबल हो, वहां पे बुक्स अवेलेबल हो, राइट। तो ये सब सारा कुछ इंश्योर करेगा कौन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बिकॉज
सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूजीसी ही करता है, तो ऑब्वियसली वो करवा सकते हैं, इस तरह के चीजें डाल सकते हैं। देन क्या होगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज एंड क्लासिकल लैंग्वेज सेटअप किया जाएगा। सो व्हाट विल बी देयर टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द लिंग्विस्टिक टीचर्स, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, गवर्नमेंट क्या करती है? एस्टैब्लिश करती है, हर एक लैंग्वेज के लिए क्या करेगी? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज सेटअप करेगी। एंड उसमें क्या होगा कि और ज्यादा रिसर्च होगा, और ज्यादा चीजें निकल के लाई जाएंगी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट, ताकि और ज्यादा डेवलप कर पाए वो लैंग्वेज, और ज्यादा लोगों के पास वो पहुंच पाए, राइट, नॉलेज का स्प्रेड हो पाए इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज ए क्लासिकल लैंग्वेज, राइट। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन मैसूर है, इसके थ्रू ये गाइडेड होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज। सो ऑल द लैंग्वेज के लिए अलग अलग होगा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट। इससे क्या फायदा होगा कि इससे फायदा ये होगा कि उस लैंग्वेज में और ज्यादा प्रमोशंस किए जाएंगे, प्लस सम काइंड ऑफ फंडिंग इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड सो दैट दोज पर्सन हु आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। Since the declaration of the classical language, बहुत सारा इनिशिएटिव किया गया है ताकि इन सब क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बहुत और ज्यादा रिसर्च हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इट हैज टेकन लॉट्स ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट द क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये हमारा धरोहर है, दिस इज इंडियन हेरिटेज, राइट, दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो लोगों के पास जब ये क्लासिकल लैंग्वेज पहुंचेगा, और ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जो अभी उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अगर पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि लैंग्वेज का कंजर्वेशन होगा। नहीं तो क्या होता है कि लैंग्वेज एक्सटिंक्ट कर जाता है, राइट। सो दैट विल बी देयर। ऑल्सो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वेयर एस्टैब्लिश्ड इन 2020, किसके लिए? संस्कृत लैंग्वेज के लिए। सो पार्लियामेंट हैज पास्ड एन एक्ट एंड थ्रू विच 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ व्हाट? संस्कृत लैंग्वेज, राइट। सो दिस वाज ऑलरेडी डन। Then the Central Institute of Classical Tamil was set up। अभी हमने बात किया ना कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाइप की चीजें जो है वो सेटअप की जानी है। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल वाज सेटअप लेटर ऑन। देन सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो संस्कृत के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया था, तमिल के लिए सेटअप किया गया था, एंड आगे चल के और जो बाकी 4 लैंग्वेज बच गए, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। तो ऑल 6 क्लासिकल लैंग्वेज जो पहले था 2024 से पहले, उन सब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सेटअप किए जा चुका है। और इसमें किसके अंदर सेटअप किया जाता है? वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन मैसूर के अंदर ये सारा कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं, राइट। तो अब इसमें और ज्यादा रिसर्च होगा इन सब सारे लैंग्वेज को, और ज्यादा प्रमोशंस होंगे, और ज्यादा काम होगा इन सब सारे लैंग्वेज के। अब 5 नए लैंग्वेज बढ़ गए हैं। So there will be some kind of central institutes for setting up for those kind of language as well, right? तो उनके लिए भी ये सेंटर एक्सीलेंस फॉर द स्टडीज सेटअप किए जाएंगे फर्दर। देन नेशनल अवार्ड्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज that has been established for all the classical language। अभी तक तो 6 किया गया था, अब जो 5 ऐड हुए हैं उनके लिए भी किया जाएगा। देन यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सब में उनके लिए चेयर रखा गया, मीन्स उनके लिए प्रोफेसर्स होंगे अवेलेबल हु विल बी टीचिंग सच क्लासिकल लैंग्वेजेस, राइट। एंड ओवरऑल व्हाट विल बी द आइडिया? द आइडिया विल बी टू प्रमोट द क्लासिकल लैंग्वेज। अब यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ ली थी बहुत सिंपल सा कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं। सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस ईयर यूपीएससी विल आस्क दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बिकम द सेंट्रल द क्लासिकल लैंग्वेज, or what are the benefits to after getting the status of the classical language. Similarly, the UPSC can also ask what has been the new language which has been added under the classical language status, right? So I hope you have understood this topic. We have already covered all these topics under our current age program, that is a 1-point solution for the prelims 2025. And in this program we provide you material, we also provide you test, we provide you lectures. So overall you will be getting everything at one roof, right? That is current age prelims.
There will be 23 tests. Among that, there will be 13 workshops, and that is workbook sessions will be there. Then in 8, the all current affairs have been divided into 8 modules, right? For example, polity, governance, economy, geography, environment. So like that, in entire 1.5 years of the current affairs you can cover under this. There will also be test of sectional types as well as the full length test will also be there. So if you are interested and still you are not able to do the current affairs, so this program will be very much helpful for you. So that is all from my side in this session. ये बहुत important topic था which I expect that it may appear in the UPSC prelims 2025. So we will be coming up with the next important topics. Thank you very much.